راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، لو وہ حاکم کے سپاہی آئے صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، اور اپنے غلاموں کو فرمایا نا امید مت ہونا، کیوں رضا کڑتے ہو ہنس کے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنس کے اٹھو، ارے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ سامعین کرام، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والوں، اولیاء اکرام کے دیوانوں، بزرگان دین سے محبت کرنے والوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پر جان دینے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سنی بھائیوں، ابھی آپ نے چند روز قبل ایک ظفر اقبال جو بہار کا رہنے والا ہے اور اس کا ایک دوست صاحب جو سنیوں کو پریشان کرتا ہے، میرے سرکار حضور مشاہد ملت اکثر فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، اور جو اگر کوئی ہم کو چھیڑ دے تو پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں، اور تو اس میں وہ رات کو پریشان کرتا ہے سنیوں کو۔ تو میرے بھائیوں نے، اللہ کا فضل ہے مجھے اس لائق اللہ نے بنایا اپنے محبوب کے صدقے میں، جو میرے بھائی مجھ کو یاد کرتے ہیں رات میں، تو یاد کرا جب تو رات میں 2 بجے اس کا کیا حال ہوا، وہ کولڈ بیڈ آپ سماعت کر چکے ہیں، اور اس میں کیا کیا وعدے کیے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں۔ اب یہ جو آپ سماعت کریں گے یہ اس کا گرو ہے، اس کا نام ہے عارف حیات۔ پورا نام آپ انٹروڈکشن پورا جب یہ کلپ سنیں گے تو شروع میں ہی اپنا انٹروڈکشن وہ دیتا ہے، سن لیجئے گا۔ جب اس کی بات ہوئی، جب اس کے دوست ظفر اقبال کی دھلائی ہوئی تو یہ اگلے دن اس نے بھی رات کو ہی فون کرا 12 بجے، بولا آپ نے میرے دوست کو پھنسایا، مجھے نہیں پھنسا پاؤ گے، مجھ سے بات کرو۔ تو ہم نے کہا بھائی دیکھو ہمیں مت پریشان کرو، بات ٹھیک نہیں ہوگی، نہیں پھر گھر تک آپ کا چھوڑا نہیں جائے گا، گھر تک آپ کو نہیں مانے یہ تو پھر فون لگایا تو اب آپ دیکھیں گے یہ کتنی بار بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اور سامعین اکرام، ان کے جب ان سے بات چلی تو ان سے کچھ سوالات میرے ہیں، جو سوالات انشاءاللہ آپ سنیں گے بعد میں۔ پہلے آئیے ان سے سماعت کریں، دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، انٹروڈکشن انہوں نے فون کیا، انہوں نے کیا کہا وہ آپ سماعت کریں، ان کے دعویٰ دیکھیے، پھر ان کی دلیل دیکھیے، بچکانی باتیں۔ یہ ان کے گرو کا یہ عالم ہے، ایک عالم ہے اہل حدیث کا، یہ عالم کیا اہل حدیث کے لیے عالم کہہ رہا ہوں، ہماری نظر میں تو جاہل سے بھی بدتر ہے یہ خبیث۔ اور دیکھیے سبحان اللہ، ہمارے ایمان کی ضمانت اپنی زبان سے یہ خود دے رہا سبحان اللہ کہ ہم تم کو مسلمان جانتے ہیں سنی بریلویوں کو، لیکن ہم نے ڈنکے کی چوب پر کہا کہ ہم تم کو کافر و مرتد جانتے ہیں، تمہارے کفریہ عقائد کی بنیاد پر۔ سامعین کرام، آئیے ان سے سوالات ہیں وہ بعد میں ملاحظہ کریں گے، آئیے پہلے ان کی کال ڈیوین سے جو بات ہوئی وہ آپ سماعت کر لیں۔ This call is now being recorded. ہلو، ہیلو جی، کون؟ آپ کل رات میں آپ نے 12 بجے فون کیا تھا، جی کل رات میں آپ نے فون کیا تھا، مس کال ماری تھی بھائی۔ ہاں بھائی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بے فالتو کا چیز کے لیے آپ لڑائی لڑ رہے تھے۔ آپ کا نام؟ میرا نام وہ عارف حیات، کس جگہ سے ہیں آپ؟ میں چمپارن سے ہوں، بہار، اسٹیٹ بہار۔ اچھا اچھا، جی اس ٹائم جی، تو آپ کو کچھ اور دکھا رہا ہے، کہیں اور جگہ دوسری۔ نہ بہار کا ہی ہوگا، اس چمپارن ہوگا۔ اچھا جی، بتائیں، ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ نے فون کیا تھا کس وجہ ہاں، سے میں کیا؟ یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو دیکھا، ایک دوست ہی ہیں ہمارے، بہت بڑا متر ہیں، ان سے آپ لوگ لڑائی کیے جا رہے تھے، فالتو کے باتوں کے لیے آپ لوگ لڑ رہے ہیں۔ بھائی آج دیش میں جو مسلم سماج اتنا پیچھے ہے، یہ مسلکی جھگڑا کی وجہ سے ہی پیچھے ہیں۔ میں بولوں اب ہو گیا آپ کا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں بول آپ بھی دیجیے۔ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن کی قائد ہے، چھٹا پارہ میں آدھا پارہ سے پہلے اللہ تعالیٰ من قتل الناس جميعا کی، جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک منوش کو قتل کر دیا، گویا کہ پورے انسانیت کو قتل کر دیا، سنسار کے پرتھوی پہ جو بھی منوش ہے سارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں ایک اور، آپ اگر آپ مدرسے سے پڑھے ہوں گے، آواز سے تو لگ رہا کہ آپ مدرسے سے پڑھے ہوئے ویکتی ہیں۔ نہیں بولتے رہیے آپ، جی جی، میں تو سنتا رہوں گا، جب آپ خاموش ہوں گے جب ہی بولوں گا انشاءاللہ۔ جی جی، بالکل بالکل، ایک انسانیت کا وہی ہونا چاہیے، ایک پڑھے لکھے لوگوں کی ایک یہی پہچان آپ ہے۔ اتنی دیر بات کریں گے تو اندازہ لگا لیں گے کہ گالیاں کون دیتا ہے کون کیا، آپ سب سمجھ جائیں گے۔ اور آپ بولتے ایک آپ جو بولنا ہے ایک بولیں۔ پڑھے لکھے انسان کی پہچان ہے کہ جب اگلا پرسن بولے تو اس باتوں کو بالکل خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ جس طرح آپ لوگوں نے ایک دودھ پرستی کا بات کر رہے تھے، ہم تھوڑی دیر کھانا کھا کے ٹہل رہے تھے تو اس سمے ہم نے آپ لوگوں کا بحث کو سنا، تو اس لیے میں نمبر لیا تھا کہ بھائی مدعے پہ بات کیا جائے۔ کس آپ طریقے بھی کے؟ جانتے ہیں
हम लोग बुत परस्ती को लेकर बातचीत करते हैं, जैसे किसी का सजदा करना, अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाना। तो आप सब भी जानते होंगे, आप भी आवाज से लग रहा कि आप मदरसे से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, तो आप जानते होंगे कि सूरह लुकमान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द आतैना लुकमानन हिकमतन अन इश्कुर लिल्लाह, पढ़े ना? आप बोलते रहिए। इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क एक ऐसी अजीम गुनाह है कि अल्लाह ताला और गुनाह को माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं कर सकते हैं। और लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटा को हमेशा ये नसीहत किया करते थे कि बेटा तुम दुनिया का हर काम करो, लेकिन शिर्क कभी नहीं करना, इससे तुमको हर हाल में बचना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था, आपसे कोई लड़ाई और झगड़ा, हम लोग वो व्यक्ति नहीं है अब मेरी कि सुनिए, किसी से लड़ाई और झगड़ा करते हैं। आप अब बस मेरी बात सिर्फ अब 30 से तकरीबन 2 या 2.5 मिनट बोल चुके हैं। मैं सिर्फ मैं सुनता रहा, 20 से 30 सेकंड मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं बिल्कुल आपकी खामोशी के साथ आपकी बात को सुनूंगा। बोलिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आप जान रहे हैं तो फिर इस बात पे बहस करने की क्या जरूरत है। और मुस्लिम समाज आज पीछे है, सिर्फ इसी के कारण है कि मसलकी फिरका में पड़ा हुआ है। आपका जो मसलक है, आप बता, आप उस पर अमल कीजिए, अहले हदीस का मसलक जो बता रहा उस पर अमल करेगा, और हनाफ वाले मसलक जो बता रहे देवबंदी उस पर अपना अमल करेगा। इसमें लड़ाई करने की, झगड़ा करने की क्या जरूरत है? मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है। हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, एक कुरान ना आपके मसलक में कुरान का एक लफ्ज इधर से उधर हो सकता है, ना अहले हदीस मसलक में कुरान का लफ्ज एक अल्फाज इधर से उधर हो सकता है, ना बरेलवी मसलक में हो सकता है, ना सुन्नी मसलक में हो सकता है। किसी मसलक में एक कुरान का एक हरफ। Call is now being recorded. आपने 3 मिनट 45 सेकेंड आप बोले हैं। जब बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहे हैं बातों को। नहीं, रिकॉर्ड करने वाली बात नहीं, आप रिकॉर्ड कीजिए। मैं देखिए, मेरी अपनी आदत है कि मेरी जलबत में हो या मेरी खलबत, मेरे जो मुझसे जानते हैं, मुझसे राब्ते में लोग रहते हैं, वो हर कोई जानता है कि मैं किसी से चाहे मजाकिया तौर पर बात करूं या किसी भी तौर पर बात करूं, तो कोशिश ये करता हूं कोई ऐसी बात न निकले जिससे मेरी बात की पकड़ बने, शरअ के खिलाफ हो। जी, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरी बात, जी। आपने ये कहा कि मैं रास्ते से। This call is now being recorded. हेलो जी, बोलिए। नेटवर्क की वजह से जो है फोन कट गया 2-3 बार। जी, बिल्कुल नेटवर्किंग इशू है। मैं ये कह रहा था कि आप 3 मिनट 44 सेकंड बोले। आपने सबसे पहले ये कहा था कि मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि आप मेरे दोस्त को आप लोग परेशान कर रहे थे। तो परेशान करने की बात नहीं, मैंने ये बोला कि आप लोग बेवजह फालतू की चीजों का बहसबाजी कर रहे हैं। एक एक बात सुनते जाइए, जवाब देते जाइए, आपके सारे इल्जामों का इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। आपने ये कहा कि बेवजह परेशान कर रहे थे, यही मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग बेवजह से बहसबाजी कर रहे हैं। चलिए ये मान लेते जरूरत नहीं, जो आप कहो वही मान लेते हैं, लेकिन आप ये बताएं, जब हम उस इंसान को जानते नहीं, हमारे पास नंबर नहीं, तो हम रात को 12 बजे उसको क्यों परेशान करेंगे? ये बताओ, कहाँ से कर लेंगे? आप लोग कैसा नंबर लिए, क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं, ये बात आपने अगर रिकॉर्डिंग पूरी सुनी होती तो समझ में आता। वो बंदा बेवजह सुन्नियों को फोन करता है, उसने रात को 1:30 बजे मुझको फोन किया। अब आप बताइए, मुझको कोई 1:30 बजे रात को फोन करेगा तो क्या मैं उसके सवालों का, कोई मेरी माँ बहन करेगा उसके, चलो अलग बात है, ठीक है वो गाली दे रहा है, लेकिन क्या उसके सवालों का जवाब मेरे ऊपर फर्ज नहीं बनता मैं दूं? नहीं, ये तो 12 बजे 1 बजे। अगर आपका वो साबित कर दे कि मैंने उसको 12:30 बजे फोन किया रात को, तो मेरी आप मुझसे बोलने का हकदार है इस बात के लिए। ये हुआ आपका इल्जामी जवाब। दूसरी बात सुनिए, इल्जाम के अंदर हम आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे ना, हम उनके ऊपर। अरे भाई, आपने जो कहा, देखिए रिकॉर्डिंग आपकी तरफ भी हो रही, मेरी तरफ भी हो रही, इसलिए मैंने आपकी बात का जवाब दिया। तसल्ली से सुनिए आपने जो कहा। अब मेरी दूसरी बात सुनिए। एक और आपने ये कहा, आपने एक बात और कही भाई, कुछ सजदे के ताल्लुक से शायद आपने कुछ कहा था अभी। हाँ, मैं ये बोला था कि आप सब भी, हम भी जानते हैं और आप भी जान रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में लुकमान के अंदर फरमाया कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क एक ऐसी गुनाह है, एक ऐसी अजीम गुनाह है कि अल्लाह ताला इसको कभी माफ नहीं कर सकता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने जो ये इल्जाम लगाया है कि जैसे आपका दोस्त इल्जाम लगाता है कि जो है सुन्नी जाते हैं मदार पर सजदा करते हैं, जी ठीक है ना? दावा, आप देखिए पढ़े लिखे हैं तो आप जानते होंगे, जो दावा देता है, दावा करता है, उस पर दलील भी उसकी जिम्मे होती है। जी। दलील दीजिए इसकी।
देखिए ये हम लोग अहले हदीस हैं, हमारे मसलक के अंदर ये मजार का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे नजदीक देखिए वो नहीं, इस पे बाद में जाएंगे। देखिए हमारे सिस्टम में क्या, आपके सिस्टम में उससे मतलब नहीं, जो कुरान सुन्नत से सिस्टम है वही कामयाब है। जी जी, मेरा सिर्फ एक ही कहने का अब आप मतलब सिर्फ है। मुझ पर जो आपने दावा किया उस पर दलील दे दें, बस मैं ये चाहता हूँ। क्या दलील दूं मैं आपको? जो आपने दावा किया कि सुन्नी मजार पे, यही आपका दोस्त भी जो है वो तो खैर मावेन की गाली, वो तो गालीबाज एक नंबर का जाहिल है, उसकी तो बात अलग है। जी जी, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग उसकी यूट्यूब पे अपलोड है। उसमें देखिए हजारों झूठ उसने बोले हैं, लेकिन गालियां हजारों बकी है, लेकिन एक गाली भी आप मेरी तरफ से, मेरी जबान से इंशाल्लाह नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए कि किसी जो चीज का लड़ाई पढ़ा और लिखा झगड़ा, होता है, जिसने किसी पढ़ाई लिखाई देखिए थोड़ी बहुत की होती है, वो गाली गलौज से काम नहीं चलाता है। किसी चीज का समाधान लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज से नहीं होगा। किसी चीज का समाधान में बिल्कुल आपसी अब समझौता से आप होगा। मुझे बताएं, आपने जो दावा दिया है उसकी दलील दें आप। आपको क्या चीज का, मैं तो सिर्फ एक आपने ये शोर में कहा मेरा कि दलील। सुन्नी मजार पर सजदा करते हैं, जी, उसकी दलील दीजिए। दावा जो करता है उसकी दलील भी उसके जिम्मे होती है। मैं जो दावा करूंगा इंशाल्लाह उसकी दलील भी दूंगा। मैं तो आपको ये नहीं कहा, मैं ये बताया कि हमारे में नहीं है, आप में है। हो सकता है कहीं आपकी नहीं किताब हो अलग होगी। सकता है, ऐसे काम नहीं चलता। ये जी इल्जाम जी, बहुत बड़ा इल्जाम है, हो सकते से क्या मैं तो मतलब है। आपको इस पर भाई कोई अगर आप इल्जाम नहीं, इल्जाम लगाएंगे, आप जवाब देंगे, इंशाल्लाह मैं सुन्नी हूँ, मैं इंशाल्लाह उसका मैं जवाब तो दूंगा कोई हदीस और आपके ऊपर कुरान से। इल्जाम नहीं अगर लगा मैं रहा हूँ। जो देखिए शरा ये थोड़ी ना देखती कि अजीमुशान क्या कह रहे हैं या आरिफ हयात क्या कर रहे हैं। शरा तो एक तलवार है, वो तो कोई गलत देखिए, करेगा तो कटता हुआ जाएगा, वो कोई हो। मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं, मैं सिर्फ ये बोला हूँ कि मैंने कुरान के रोशनी में आपको एक बात बोली है कि इन शिरकल जुल्म नजीम। आप मुझे आपकी तो आवाजों से ये आपने ये पता भी तो चल रहा है कि इल्जाम लगाया, आपका दोस्त आप भी भी लगाता है कि हम मदारुक आप जाति भी सजदे करते हैं। देखिए, आपकी आवाजों से और आपके बोल वचन से पता चला कि आप मदरसा से कुरान में, तब कुरान मजीद और उसका तर्जुमा बखूबी आप हदीस जानते होंगे। ये सिर्फ मेरे देखिए कहने मैं का क्या कर मतलब रहा हूँ, सिर्फ इधर एक ही है। उधर आरिफ साहब, इधर उधर बात घुमाने से बताइए देखिए, क्या फायदा है। मैं बात को घुमा नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान में एक शब्द में बिल्कुल समझा दिया कि इन शिरक लजुल्म नजीम। शिरक एक ऐसी गुनाह मैं है सिर्फ इतना जो चाहता हूँ बहुत आरिफ साहब, अजीम गुनाह है, इससे बड़ा इसको अल्लाह कभी माफ नहीं कर सकता। दुनिया के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर सकते हैं, मैं गफूर मैं रहीम, मैं लेकिन शिरक एक ऐसी गुनाह है आपकी बात इसको। से मुत्तफिक हूँ, जी लेकिन आप उस पर दलील दें कि ये बात आपने कही हक है। इसमें इस जिम्न में हम आ रहे हैं आपके नजदीक के नहीं, जी, हम आ रहे हैं तो अगर आ रहे हैं तो उसकी दलील दीजिए, कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो आपने दलील कहाँ देखा, कहाँ से सुना, साबित कीजिए ना। मैं तो दलील दे ही दिया हूँ कि भाई शिरक एक अजीम गुनाह है, शिरक से आप बचिए। हम्म, आप ही नहीं बचिए, ये दुनिया के जो मैं भी इस मुसलमान बात है। से इनकार कहाँ किया कि शिर्क एक अजीम गुनाह नहीं है, जी जी, मैंने इस बात से कहाँ मेरा इनकार किया। यही मैं मेरे कहने सिर्फ का ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये कहते हैं कि ये काम हम करते हैं। नहीं, मैं आपको कहाँ बोल रहा हूँ कि आप करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी शिर्क करता हो तो शिर्क से बचना चाहिए। अगर वो जानता हो, कुरान को जानता हो, हदीस को जानता हो। आपके नजदीक अहले सुन्नत व जमात की जो जिसको दौरे हाजिर में पहचान के लिए, जैसे आप कुछ भी कहो, कोई कुछ भी अपने आप को कहलाता है, सुन्नी हनफी बरेलवी जी जिनको जी कहा जाता जी है, जी जी। आपके नजदीक क्या है वो? कौन? सुन्नी हनफी बरेलवी मुसलमान आपके नजदीक हैं कि नहीं है दौरे बिल्कुल हाजिर मुसलमान में? है, क्यों नहीं मुसलमान है? उसका भी कुरान एक है, उसका भी हदीस एक है, उसका भी बुखारी एक है, उसका भी अबू दाऊद एक है, उसका भी तिरमिजी एक है। देखिए बिल्कुल अब एक है, हर अब चीज मेरी बिल्कुल बात समान है। सुनिए। अब जब आपने कह दिया कि वो मुसलमान है, सुभान अल्लाह, तो जी जाहिर जी सी बात है जो मुसलमान होता है वो जन्नत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जाएगा। जी जी, जाएगा। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनिए, लेकिन दौरे हाजिर में जो अपने आप को गैर मुकल्लिद कहलाते हैं, अहले हदीस जी, कहलाते हैं, नहीं नहीं, ये तो गलत चीज है, ये मेरी आरोप बात है। सुनिए, कोई नहीं कहता कि हम गैर मुकल्लिद हैं। मेरी बात ये तो तो कोई सुने। नहीं दावा अरे करता है, देखिए वैसा मैंने है कोई 3 मिनट 44 सेकंड आपकी बात कही, आप मेरी एक हाँ, मिनट नहीं सुन पा रहे हैं। ना ना, क्या बोलिए वजह है? बोलिए। ऐसी क्या वजह है जो आप नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं फिर नहीं, आपका बोलिए ना। दोस्त बोलेगा कि हमारे दोस्त से हमने बात कराई, आप लोग भाग गए, इसलिए कि मेरे पास इतना सरदर्द नहीं रहता, मैं काम की बात हो तो करता हूँ, नहीं फालतू बात करने का क्या टाइम है, जरूरी नहीं है। यही तो मेरे कहने का कल मैं आप लोगों का देखो भाई बहस सुना हमारा तो मैं। आरिफ साहब सीधा हिसाब है, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ दे तो फिर हम उसको छोड़ते भी नहीं, हमारा ये मामला है बस। हम अपनी तरफ से किसी को नहीं, देखिए आपने खुद फोन किया, मैंने तो आपको फोन नहीं किया था रात जी को। जी, देखिए मैं आपके पास कल 12 बजे रात में इसीलिए कॉल किया था कि ये फालतू का बहस अब हमारी आप देखिए, परेशानी बंद आपने करें। हमको मुसलमान कहा, जी जी, हमारा बिल्कुल। ईमान का होना, हालांकि ये दलील आपके नजर आपसे मतलब है नहीं, लेकिन फिलहाल मध्य मुकाबिल सामने वाला अगर कोई कह दे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जी हमारा अकीदा सुन लीजिए, आपकी कुफरिया इबारतों और आपकी गुस्ताखाना अकीदों की बुनियाद पर हम आपको मुसलमान नहीं जानते।
اچھا، آپ کی نظر میں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہے. چلیے کوئی بات نہیں ہے. اب آپ اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں. اگر چاہیں تو مجھ سے آپ دلیل لینا چاہیں قرآن و سنت سے تو انشاءاللہ میں بھی دوں گا. لیکن اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میں آپ کے کچھ کتابوں کی عبارتیں میں پیش کرتا ہوں، آپ جی، اپنا عقیدہ تو آپ ثابت کر دلیل دیں ان دیجیے. سے. آپ کس آدھار پر ہمیں آپ مسلمان نہیں مانتے ہیں؟ ہم آپ کے کفریہ عقائد کی بنیاد پر، جیسے کہ آپ کا بہت سارے کفریہ عقیدوں میں سے ایک کفریہ عقیدہ یہ بھی ہے آپ کا، اگر آپ اہل حدیث ہیں تو بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، بن کے کیا آئے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے. جی بولیے. آپ کا عقیدہ ہے یہ؟ بالکل، وہ تو سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہے. میری بات تو سنیے، بات کو دنیا میں ہر سنیے تو جگہ. صحیح. جو میں کہنا چاہ رہا ہاں ہوں، آپ کا بولیے یہ بولیے. عقیدہ ہے جی تو یہ ہماری نظر میں کفریہ عقیدہ ہے. ان میں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے جی تو ہمارے کچھ سوالات ہیں، اس جی، سوالات کا آپ جواب دے دیں. سوالات کیجیے. کیا سوالات؟ ایک منٹ رکیے، ہولڈ کیجیے ذرا آپ. چلیے بھائی، آپ کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا، تو میرے چند سوالات ہیں تمام غیر مقلد وہابی سے. اگر میرے 10 سوالوں کا جواب دے دیں گے تو آپ کو منہ مانگا انعام ملے گا، نہیں تو اگر جواب نہ دے پاؤ تو چلو بھر پانی میں کسی کتے کے پیشاب میں ڈوب کے مر جانا. میرا پہلا سوال یہ ہے، اور بیچ میں نہیں بولنا، جیسے کہ میں نے آپ کی بہت خاموشی کے ساتھ سنا 3 منٹ 44 سیکنڈ، تو ویسے تھوڑی دیر میری بھی سن لیجیے. پہلا سوال میرا، اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا آپ کے نزدیک، تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب اللہ عرش پر بیٹھا تو بتاؤ تو عرش جو ہے حادث ہے یا غیر حادث ہے آپ کے نزدیک. دوسرا سوال، عرش جو ہے اجلی ہے، ابدی ہے یا بعد میں پیدا ہوا. تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا تو جتنے پر اللہ بیٹھا اتنا عرش، یا اس کا وجود مبارک دونوں برابر ہیں کہ نہیں. چوتھا سوال، اگر عرش اور اللہ برابر ہیں تو یہ اللہ کی ذات میں عرش کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں. پانچواں سوال، اگر آپ کہتے ہیں کہ عرش چھوٹا ہے اور اللہ کا وجود بڑا ہے تو جتنا حصہ عرش سے لگا ہے وہی خدا ہے، یا جو عرش کے باہر حصہ ہے وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا میں داخل ہے کہ نہیں، یہ بتائیں. چھٹا سوال، اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالی عرش پر بیٹھا تو پھر بتائیں تو اللہ کو بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ تمام غیر مقلد اہل حدیث، اہل خبیث، اہل حدیث کو میرا سوال ہے، چیلنج ہے، اگر جواب دے دیں میرے ان سوالوں کا تو ان کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. یہ ایک عام سنی، ایک عام رضا کے دیوانے کا چیلنج ہے تمام دنیا وہابیت کو. اور میرا نمبر بھی 9580773944، یہ میرا نمبر آپ ویڈیو میں پڑا ہوا ہے. تمام کوئی بھی اہل حدیث خبیث فون کرے، یہ میرے سوالوں کا جواب لے آئے اللہ تعالیٰ، تو اگر لے کر آتا ہے تو اس کو منہ مانگا انعام ملے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا تو بتاؤ اللہ کو بیٹھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی. جیسا اجل سے تھا ویسا کیوں نہیں رہا، بیٹھا کیوں؟ کیا کھڑا ہونے سے اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا جو محتاج ہو. ساتواں سوال، اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلے سے عرش پر بیٹھا تھا تو پھر عرش کا اجلی ہوا، یہ تو کفر ہو گیا، یعنی عرش اللہ سے بھی پہلے ہوا تو یہ تو کفر ہو گیا اللہ، کیونکہ اللہ سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. آٹھواں سوال، اگر اللہ عرش پر بیٹھا آپ کے مطابق تو اتر سکتا ہے کہ نہیں اللہ، بتاؤ. نواں سوال، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اتر سکتا تو میں کہوں گا خدا عاجز ہے، اور جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. 10واں سوال، اگر آپ کہتے ہیں کہ اتر سکتا ہے تو اس کی ذات میں تغیر آ گیا، اور جس کی ذات میں تغیر آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. دنیا بہابیت اگر اس کا جواب دے دو تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا، حلالی ہو تو جواب دو. This call is now being ہاں recorded. بولو بھائی. کہاں گئے تھے؟ اتنی بار فون کر دیا آپ کو. بھائی تو میں کام میں بزی تھا، اس لیے کال ریسیو نہیں کر رہا تھا. اچھا، میں کہہ رہا تھا جی کہ جی آپ کے تمام کفریہ عقائد میں سے ایک عقیدہ آپ کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے. وہاں پر بات چل رہی تھی، تو اس کے تعلق سے میرے کچھ سوالات ہیں، سن لیں تسلی سے، پھر انشاءاللہ امید کرتا ہوں ایک ایک کر کے آپ ان کے جواب دیتے ہیں. دیکھیے، آپ کے جو سوالات ہیں اس سوالات پہ بالکل
कुछ मानने वाले कोई सवाल जवाब है ही नहीं है कि किस तरह उसको मान नहीं लेंगे कि आपका सवाल नहीं, ये है कि सुनिए आप सुनिए, मेरी देखिए बात सुन। आपका सवाल ये है कि बिना हम सवाल अहले सुने ही आपको पता चल गया है कि हमारी ये जो है टांग चलिए उल्टी होने वाली है। चलिए आपको चलिए क्या इल्म गैब है क्या? चलिए अभी तो आप कुछ दिन पहले जो आपने सवाल किया, आपका प्रथम जो पहला सवाल था कि हम आपको अहले हदीस को हम मुसलमान मानने से इनकार करते हैं, वो उनके मुसलमान खुफिया नहीं है। अकायद की बुनियाद पर लेकिन ये कहा था। ये सुनिए आप मेरी जब बात, हमसे उसमें ये भी मैंने कहा था कि जी उन तमाम अकीदों में से एक आपका अकीदा ये कि अल्लाह ताला उस पर बैठा, आपने कहा हाँ। तो हाँ मैंने कहा बिल्कुल उसके ताल्लुक से मेरे चंद सवाल हैं, आपने कहा हाँ बोलिए। मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर बात खत्म हुई तो वहीं से शुरू कीजिए, फिर इंशाल्लाह सवाल सुन लीजिए, आपके फिर आपका जो इंशाल्लाह आप सवाल आधा घंटा तक बोलेंगे, मैं आपके सवाल नहीं सुनूंगा, जवाब सुनूंगा मैं। आपका जो सवाल है सवाल ही गलत है। आप किस तरह बोल सकते हैं कि आप अहले हदीस को हम मुसलमान नहीं मानते, मुसलमान मानने से हम हाँ इनकार करते हैं? ये हाँ, तो थोड़ी हो हम सकता है, देते हैं, कहीं नहीं हो हम दे सकता है। हम बता हम अगर हमने आपसे क्या कहा, ये हो नहीं सकता। दावा किया, दलील नहीं दी किसी बात की, मैं नहीं, ये आपकी दावा बातों को करूंगा, मैं नहीं मान इंशाल्लाह मैं सकता हूँ। दलील दूंगा। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं आपके होता है। आपके आप दलील को जो मैं मैं नहीं मान दावा सकता। करूंगा उस पर आप दलील भी दूंगा। आप एक अहले हदीस को कह सकते हैं वो मुसलमान नहीं है, तो मैं कहीं से क्या कह साबित रहा ही हूँ, नहीं है। आप अहले हदीस नहीं, अहले हदीस मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। जी आपके कुफरी अकायद गैर आज के जो जितने हैं, ये जर्दीस के मानने वाले या जो है जूनागढ़ी के मानने वाले, ये जितने भी हैं जो गूगल के मुकल्लिद बने बैठे हैं आज, यूट्यूब के मुकल्लिद, ये बात लंबी हो जाएगी इधर उधर अगर जाएंगे हम आप। तो जहां से बात गूगल शुरू हुई और कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है, तो बस चंद सवालों के जवाब देते हैं बस। सबसे पहला सवाल ये है कि जी अगर आपका ये कीदा है अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है, सवाल जी उसमें ये है कि जी अगर अल्लाह अर्श पर बैठा है तो अर्श ये बता दीजिए आप, अर्श जो है वो हादिस है या गैर हादिस आपके नजदीक? देखिए हम वो कुछ सुनिए, सवाल सवाल जब मुकम्मल हो जाए जब बोलिए। मैंने आपकी 3 आपका मिनट सवाल ही 44 गलत सेकंड है। बात सुनी, आप एक बार हम सुन ही तो लीजिए, सुन रहे हैं, सुनने में लेकिन क्या जा रहा है, सुन तो आपका लीजिए। सवाल ही गलत है। आप जिस तरह नहीं, सवाल करा आप कि हम एक देखिए अहले यही हदीस को परेशानी हम है आप लोगों नहीं में। आप वो तो जाहिल था, समझ में आता था। जफर इकबाल, आप पढ़े लिखे होकर हरकत दे रहे हो। 3 मिनट के बाद अब इधर अजान लग रही है, जरा अजान के बाद इंशाल्लाह बात करता हूँ। फोन अपने पास रखिएगा, 2 मिनट में फोन वापस करता हूँ। आप This call is now being आपने सुना है सामीन इकराम, जैसे ही सवाल इनसे किए गए 10 सवाल, ये किस तरीके से भागे। और मैं फिर कहता हूँ, ये मेरे 10 सवाल दुनियाए गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस पर मेरा कर्ज है। कर्ज ये कि रज़ा के दीवाने का, सरकन नबी के चाहने वाले के, एक अदना से चाहने वाले का, एक खानकाह हशमतिया के, एक दर के, एक कुत्ते का। ये चैलेंज है मेरे 10 सवालों का जवाब अगर कोई गैर मुक़ल्लिद दे दे, अहले हदीस अपने आप को कहलाने वाला दे दे, उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। मगर मेरा नंबर भी है 9580773944। लेकिन क़यामत तक कोई भी अहले हदीस, अहले खबीस, अहले हदीस जाहिल, चाहे वो अब्ने अब्दुल वहाब नज़दीकी खोद को ले आएँ, चाहे डॉक्टर ज़ोकिर नालायक को ले आएँ, चाहे मिराज रब्बानी को ले आएँ, तारिक जलील को ले आएँ, तौसीफ़ुश शैतान को ले आएँ, जिसको भी लाना हो ले आएँ, मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अगर कोई गैर मुक़ल्लिद में कलेजा है, गुर्दा है, तो जवाब दे। सामीन इकराम, अब आप देखिए आगे बात। कॉल रिकॉर्डिंग जैसे मेरी बढ़ी, बहुत बार फ़ोन कट करके भागा, तो जो इनका चेला था, जो पहले जलील हो चुका है, जो आप रिकॉर्डिंग पहले सुन चुके हैं पिछली रिकॉर्डिंग में, ज़फ़र इकबाल, देखिए जब उस गुरु मुँह दिखाने के लायक नहीं रह गया तो गुरु फ़ोन छोड़ के भाग गया और ज़फ़र इकबाल अपनी औकात पे आ गया। गालियाँ कैसे देता है अब वो समाप्त करें। अब यहाँ से देखिए, सुबहान अल्लाह, सुन्नियों को अजीम फ़तेह, सुबहान अल्लाह मुबारक हो कि गैर मुक़ल्लिद का आलिम भी, सुबहान अल्लाह, गैर मुक़ल्लिद का आलिम, हमारे लिए नहीं, ये बात ध्यान रखिए, कोई ये ना कहे अज़ीम उश शान रज़ा ने आलिम कह दिया। गैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक जो आलिम है, जो हमारे नज़दीक जाहिल अबू जहल की औलाद है, और देखिए कैसे सुबहान अल्लाह सुन्नियों की जीत मुबारक हुई। सुबहान अल्लाह, सुन्नियों की जीत तो जो है, सुन्नियों की फ़तेह, व तुफ़ैल अबुल फ़तह, व तुफ़ैल सरकार शेर सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुबहान अल्लाह। अब आप मुलाहिज़ा करें, देखिए गुरु जलील होकर भागा तो चेला कैसे बीच में खिसिया गया कि मेरे गुरु कैसे जलील हो गया। तो चेला ने सोचा जब मेरा गुरु जलील हो गया तो लाइए मैं भी क्यों ना थोड़ा सा जलील हो लूँ। आप मुलाहिज़ा कर लें। This call is now being recorded. हेलो जी बोलिए। आप 10 मिनट में फोन वापस कर रहे हैं तो बहुत बाधा खिलाफी करते हैं आप। भाई साहब समय का किल्लत है मेरे पास। तो भाई समय का किल्लत है, आपको रात को 12 बजे टाइम मिल गया। ये देखिए आपका झूठ, देखिए कल रात को आपको 12 बजे झूठ जब मिल गया, जब आपके दोस्त की पिलाई हुई। अब जब आपसे सवालों की बारी आई, आप 4 मिनट बोले, जब आपसे सवालों की बारी आई तो आपके पास टाइम नहीं है। अरे उस दिन के लिए टाइम नहीं है जिसके लिए पूरा खानदान करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने लुटा दिया। बताओ, सहाबा इकराम ने अपनी जान दी थी, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है।
अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी आपको 2 मिनट का टाइम तो निकालो कम से कम। हेलो हेलो, भाई अभी टाइम नहीं है। अरे तो 2-3 मिनट का टाइम तो निकालो कम से कम आरिफ साहब। हेलो हेलो हेलो, फिर देखिए यूट्यूब पे आपकी रिकॉर्डिंग पड़ जाएगी, फिर ये नहीं कहना हमें मौका नहीं दिया बात करने को। अच्छा बोल बोल, तेरा बाप आ गया, बोल। अबे तू कहाँ गया, तू तो खारिज है, तू उसको बात करा, उसको दे। चल ना तू, तेरा स्टेटस गया, तू उसको दे, चल तू हमसे उसको पंगा दे। ले। नहीं तू उसको फोन दे, तू हमसे पंगा ले, चल। उसको दे फोन। भोसड़ी के तुमसे एक तो जवाब दिया जा रहा नहीं रहा है ना। अब आवाम फैसला करेगी कि जब इसका बड़ा गुरु भागा तो चेला आया। अबे सिर्फ इतना ही खाली अकीदे ही रखते हो, अल्लाह ताला अर्श पे बैठा, सवाल सिर्फ नाम सवालों शुरू हुआ, बस मावानी गालियां शुरू। सामने ग्राम अवाम अहले सुन्नत, ये है इनका असली चेहरा, इनके गुरु का। अब अपने गुरु से कहना फोन ना कर दे यहाँ पर। कब्र पे सर पटकने वाला मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, अपने गुरु से कहना अगर वो रुंडी का नुत्फा नहीं है ना तो बात करे, अभी बात करे। उसका बोल किसी रंडी का अगर पैदाइश करा हुआ नहीं तो उससे बोले बात करे, अभी उसको दे फोन। तू कहाँ से बीच आए, दलाल है क्या तू उसका? है बे? अबे जफर इकबाल, तेरी 2 बार धुलाई हो चुकी, तेरी औकात भी ठिकाने नहीं आई। अबे अपने गुरु को फोन देना। अबे अल्लाह ताला अर्श पर बैठा, उसके ताल्लुक से चंद सागर तुम्हारा दावा है तो फिर आओ मैदान में ना। अबे ये बता, तू अल्लाह ताला पहले था कि अर्श आजम पहले है, ये बता पहले। आ इधर मैदान में, अल्लाह ताला अर्श पे बैठा है तो खड़ा हो सकता है कि नहीं, ये भी बता। हेलो, Call is now being अबे recorded. अपने बाप को फोन देना। अरे तेरा बाप मैं हूँ ना, तू हमसे बात अबे कर। तू कहाँ से आया, तू उसको दे फोन। आरिफ को दे फोन, आरिफ को दे फोन, बात कर। तू आरिफ को फोन दे, आरिफ को फोन दे, अपने गुरु को फोन दे। आरिफ के गुरु मैं हूँ, चल तू बात। अबे अपने गुरु को फोन दे, गुरु को अपने। तू हमसे बात करना, तू गुरु के फोन देगा कि नहीं, सिर्फ यस और नो में जवाब दे, देगा कि नहीं, तू हक पे है, देगा कि नहीं, गुरु से बोल अपने। तू हक पे है। अबे तू हक पे साले जाहिल कमीने कुत्ते अबू जहल के औलाद, तूने रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करी, तुझसे मैं बात क्या करूँ गंवार? चल गवार के तुझसे बात करा, अपने गुरु के फोन दे, देख नहीं अगर दिया तो फिर उसके नंबर के साथ क्लिप अपलोड करूंगा 10 सवालों के साथ में। और दुनिया है गैर मुकल्लिद, दुनिया है अहले हदीस, जवाब नहीं दे पाएगी कि नहीं, उसको बोल ले बात कर ले। 15,000 अभी उससे बात करा, अभी उससे बात करा, उससे बात करा, उसके नहीं बस की। अगर तू कह दे वो नहीं बात कर पाएगा तब तुझसे करूंगा। तू ये कह दे, देख मैं हक पे हूँ, इसकी दलील ये तेरा बाप जो आरिफ है ना, आरिफ ये मुझको मुसलमान भी कह चुका हमको और जन्नती भी कहा है तेरे बाप ने। हाँ तो तेरे भाई ने कहा, अपने भाई पर फतवा लगा, अपने भाई पर हुक्म लगा पहले लगा। कुत्ता के क्या तू कुत्ता है? नहीं उससे पूछ उसने क्या कहा। मैंने उसको बोला है तुम मेरी नजर में मुसलमान नहीं हो, लेकिन वो कहता है कि तो सुन्नी बरेलवी मेरी नजर में मुसलमान है और सजदा नहीं करते कब्र पे। तू कहाँ से इल्जाम लगाता है बे? अरे तू सब अरे अपने बाप, तेरे बाप की ऐसी तैसी हो गई, तेरे बाप की ऐसी तैसी, तेरे बाप बात करेगा कि नहीं? अरे तेरा बाप मैं अबे अपने तेरा बाप जो है तेरा बाप जो है हमको मुसलमान होने के सर्टिफिकेट दे रहा है, तो हम पे कुफ्र का फतवा लगा रहा है। ये बता दोनों में से सही कौन है, तू कि वो? साबित कर। दोनों में से सही कौन है, तू कि वो? ये बता। साबित कर तू। तुझसे क्या बात करूं जाहिल, रख फोन। अब तेरे बाप की रिकॉर्डिंग गुरु की तेरे गुरु की रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, परसों तक यूट्यूब पर पहुंचेगी तेरे बाप के नंबर के साथ में। आवाम फैसला करेगी कि ये भागा कैसे है बिना बात करे, और नहीं तो उसको बोलना अपने बाप से कि कल तक का टाइम है, उसके पास बात कर ले। नहीं तो चंपावत में जो चंपारण कहाँ रहता है उसके नंबर के साथ चंपारण जहाँ भी हो बिहार में वही क्लिप बैठेगी, शेयर होगी। चल रख फोन खबीस, अपने बाप को बोलना बात करे तो करे। तू हमसे बात क्यों? चलिए भाई, आपका ये अकीदा है अल्लाह ताला अर्श पर बैठा, तो मेरे चंद सवालात हैं तमाम गैर मुक़ल्लिद वहाबी से। अगर मेरे 10 सवालों का जवाब दे देंगे तो आपको मुँह मांगा इनाम मिलेगा, नहीं तो अगर जवाब ना दे पाओ तो चुल्लू भर पानी में किसी कुत्ते के पेशाब में डूब के मर जाना। मेरा पहला सवाल ये है, और बीच में नहीं बोलना जैसे कि मैंने आपकी बहुत खामोशी के साथ सुना 3 मिनट 44 सेकंड, तो वैसे थोड़ी देर मेरी भी सुन लीजिए। पहला सवाल मेरा, अगर अल्लाह ताला अर्श पर बैठा आपके नज़दीक, तो पहला सवाल मेरा ये है
کہ جب اللہ عرش پر بیٹھا تو بتاؤ تو عرش جو ہے حادث ہے یا غیر حادث ہے آپ کے نزدیک؟ دوسرا سوال، عرش جو ہے اجلی ہے، ابدی ہے یا بعد میں پیدا ہوا؟ تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا تو جتنے پر اللہ بیٹھا اتنا عرش یا اس کا وجود مبارک دونوں برابر ہیں کہ نہیں؟ چوتھا سوال، اگر عرش اور اللہ برابر ہیں تو یہ اللہ کی ذات میں عرش کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں؟ پانچواں سوال، اگر آپ کہتے ہیں کہ عرش چھوٹا ہے اور اللہ کا وجود بڑا ہے تو جتنا حصہ عرش سے لگا ہے وہی خدا ہے یا جو عرش کے باہر حصہ ہے وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا میں داخل ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیں۔ چھٹا سوال، اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالی عرش پر بیٹھا تو پھر بتائیں تو اللہ کو بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تمام غیر مقلد اہل حدیث، اہل خبیث، اہل حدیث کو میرا سوال ہے، چیلنج ہے، اگر جواب دے دیں میرے ان سوالوں کا تو ان کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ ایک عام سنی، ایک عام رضا کے دیوانے کا چیلنج ہے تمام دنیا وہابیت کو۔ اور میرا نمبر بھی 9580773944، یہ میرا نمبر آپ ویڈیو میں پڑا ہوا ہے۔ تمام کوئی بھی اہل حدیث خبیث فون کرے، یہ میرے سوالوں کا جواب لے آئے، اللہ تعالیٰ تو اگر لے کر آتا ہے تو اس کو منہ مانگا انعام ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا تو بتاؤ اللہ کو بیٹھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ جیسا اجل سے تھا ویسا کیوں نہیں رہا؟ بیٹھا کیوں؟ کیا کھڑا ہونے سے اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا جو محتاج ہو۔ ساتواں سوال، اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلے سے عرش پر بیٹھا تھا تو پھر عرش کا اجلی ہوا، یہ تو کفر ہو گیا، یعنی عرش اللہ سے بھی پہلے ہوا تو یہ تو کفر ہو گیا اللہ، کیونکہ اللہ سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آٹھواں سوال، اگر اللہ عرش پر بیٹھا آپ کے مطابق تو اتر سکتا ہے کہ نہیں اللہ؟ بتاؤ۔ نواں سوال، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اتر سکتا تو میں کہوں گا خدا عاجز ہے، اور جو عاجز ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ 10واں سوال، اگر آپ کہتے ہیں کہ اتر سکتا ہے تو اس کی ذات میں تغیر آ گیا، اور جس کی ذات میں تغیر آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا بہابیت اگر اس کا جواب دے دو تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا، حلالی ہو تو جواب دو۔